Good morning, children, and welcome to our EVS class. Children, today we are going to read chapter number 2, that is The Plant Fairy. Introduction. Little Madhav went to bazaar with his mother. मतलब लिटिल माधव जो है वो अपनी मम्मा के साथ बाजार गया. His mother bought some vegetables, fruits and some flowers for पूजा. उसकी मम्मा ने कुछ fruits, vegetables और flowers खरीदे पूजा के लिए. On the way, रास्ते में, he asked his mother, उसने अपनी मम्मा से पूछा, how we obtain those, हमें ये कहाँ से मिले और कैसे मिले. So children, let us see how his mother explains. In this lesson, you will learn about plants, their variations and importance in human life. Objectives of this chapter. At the end of the lesson, you will be able to identify plants, become familiar with the parts of the plants and their functions, and understand the importance of the plants. Plants. What are the plants? क्या चीज़ हैं plants? किन्हें कहते हैं हम plants? Plants are living things. Plants are an important part of our environment. There are small plants and there are big plants. Some plants are very small and some are very tall and some others are very big. But despite all these, plants have same parts and same functions. Means plants जो हैं क्या हैं, important part है हमारे environment का. कुछ plants small होती हैं, कुछ plants big होती हैं, कुछ tall होती हैं. पर सभी प्लांट्स के, चाहे वो बिग हैं, चाहे स्मॉल हैं, टॉल हैं, वीक हैं, स्ट्रॉन्ग है, कैसी भी प्लांट है वो, पर उनके पार्ट्स, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं उसी तरह प्लांट्स के भी बॉडी पार्ट होते हैं. तो हर प्लांट का पार्ट जो है वो क्या है, सेम है. और सारे प्लांट एक ही जैसे फंक्शन मीन्स सारे प्लांट एक ही जैसे एक ही तरह से काम करते हैं. Classification of plants. Classification of plant means plants are classified according to their size. The first one is trees. Trees are big and tall plants. It means very big and very tall plants are known as trees. They have very thick and hard stem called trunk. अब trees की ये वाली जो चीज़ होती है that is very hard and very thick, और इस हिस्से को, ट्री के इस पार्ट को हम कहते हैं trunk. Examples of trees are banyan tree, mango tree and coconut tree. So children, what are the trees? Trees are very big and very tall plants are called trees. Then climbers. What are the climbers? As you can see in the picture, there are some plants which grow taller but the stem remains green and weak. As you can see in this picture कि ये प्लांट टॉल तो है बट इसकी जो स्टेम है वो क्या है, ग्रीन तो है बट स्टेम बहुत ही वीक है, कमज़ोर है. इतनी वीक है इनकी स्टेम कि दे कैन नॉट स्टैंड अप ऑन देयर ओन, कि वो अपने सहारे पर खड़े नहीं रह सकते हैं. दैट इज़ वाई दे नीड अ सपोर्ट. इसलिए इनको क्या चाहिए, सपोर्ट, सहारे की ज़रूरत है.
सपोर्ट ऑफ अनदर ट्री, किसी दूसरे पेड़ के सहारे की ज़रूरत है। एज वी कैन सी इन द पिक्चर कि ये वाला प्लांट जो है वो ट्री के सहारा ले लेकर टॉल हुआ है। They need the support of another tree, wall, or a stick to climb on them. They are called climbers. It means, what are the climbers? Climbers are the tall plants, but their stem is very weak. That is why they need the support of another tree, wall, or stick to climb on them. And the examples of climbers are, for example, money plant, pea plant, jasmine plant are the few examples of climbers. Then next type of plant is creepers. Creepers, what are the creepers? There are still others which also have a weak stem. अब क्लाइंबर की तो होती है weak stem, but creepers also have weak stem. But they prefer to creep on the ground. But वो किसी पेड़ का सहारा लेकर ऊपर नहीं चढ़ते, वो ग्राउंड क्या करते हैं, ग्राउंड में ही रेंग रेंग कर बड़े होते हैं. They prefer to creep on the ground rather than climbing up. They are called creepers. For example, pumpkin, watermelon. Then next type of plant is herbs. Herbs are smaller than shrubs. Herbs जो हैं वो बहुत छोटे छोटे plants होते हैं. They do not grow very tall like ट्रीज़. ये ट्रीज़ की तरह बड़े बड़े लंबे लंबे नहीं होते हैं. दे रिमेन वेरी स्मॉल एंड क्लोज टू दी सॉइल. ये मिट्टी के बहुत ही नज़दीक होते हैं और बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं. सो देयर स्टेम ऑल्सो रिमेन सॉफ्ट एंड ग्रीन. इसीलिए इनकी स्टेम जो होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट एंड ग्रीन. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. और ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स. Most of them have medicinal values and are used in cooking. इनमें से कई herbs ऐसी हैं जो मेडिसिन में भी यूज़ होती हैं और हमारे किचन में कुकिंग के लिए भी यूज़ होती हैं. Examples of herbs are grass, mint, wheat, tulsi, spinach, coriander. Then next type of plant is shrubs. What are shrubs? Some other plants are shorter than herbs. कुछ plant herbs से भी छोटे होते हैं. Some other plants are shorter than trees. Herbs के अलावा एक plant और ऐसा है जो tree से छोटा होता है, but taller than herbs, पर herbs से बड़ा होता है. Their stem are soft and green when young. जब ये छोटे छोटे होते हैं तो इनकी स्टेम जो होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट एंड ग्रीन. एंड गेट वुडी एंड स्ट्रॉन्ग एज दे ग्रो. पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी स्टेम क्या होने लग जाती है, स्ट्रॉन्ग. दे डू नॉट बिकम वेरी थिक लाइक द ट्रंक ऑफ द ट्री. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs. सो चिल्ड्रन, shrubs आर स्मॉलर देन ट्रीज. ट्री से छोटी होती हैं shrubs. देयर स्टेम इज़ थिन एंड वुडी. उनकी स्टेम जो होती है वो थिन होती है और वुडी लक्कड़ वाली होती है. दे हैव मैनी ब्रांचेज. इनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं. एंड दे आर लाइक बुशीज. और ये झाड़ियों की तरह दिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल रोज, मैरीगोल्ड, एस्टर, जैस्मीन, कॉटन. Then climbers. There are some plants which grow taller, but the stem remains green and weak. They cannot stand up on their own. They need a support of another tree, wall, or a stick to climb on them. They are called climbers. And examples of climbers are money plant, pea plant,
etc. Creepers. There are still other plants which also have a weak stem, but they prefer to creep on the ground rather than climbing up. They are called creepers. For example, watermelon ये जमीन में ही उगे हुए आपको दिखेंगे. And pumpkin. Then parts of plant. There are two parts of the plant. प्लांट के टू पार्ट्स होते हैं. जैसे हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, हैंड, लेग्स, फुट, चेस्ट, शोल्डर्स. सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो हैव अ पार्ट. उसी तरह प्लांट्स के भी बॉडी पार्ट हैं, बट टू मेन पार्ट हैं प्लांट के, दैट इज रूट्स एंड शूट. आई एम रिपीटिंग अगेन. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट, that is roots and shoots. Just like us, plants also have different parts, and each part of the plant plays an important role. जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं और हर पार्ट हमारी बॉडी का अलग अलग काम करता है, उसी तरह each part of the plant plays an important role. And the first part of the plant is root, and the second part of the plant is shoot. Roots. They grow under the soil. The part of the plant that grows under the soil, कि plant का वो part जो मिट्टी के नीचे उगता है, is known as root. I am repeating again. The part of the plant below the soil is known as root system. कि जो प्लांट का वो पार्ट जो मिट्टी के नीचे होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम. रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली. अब रूट क्या काम करता है? प्लांट को कस के पकड़ के रखता है अंडर द सोयल. मोस्ट प्लांट्स नीड वाटर एंड सोल्ट फ्रॉम द सोयल. ज़्यादा सभी प्लांट्स को क्या चाहिए? वाटर चाहिए. कहाँ से चाहिए? सॉइल से चाहिए. तो सॉइल से वाटर कौन प्रोवाइड करेगा? रूट्स. किनको? प्लांट के बाकी पार्ट्स को. सो रूट्स टेक दीज एंड सेंड देम अप टू दिस स्टेम एंड देन लीव्स. अब रूट्स जो है वो मिट्टी के नीचे जो पानी है और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसको प्रोवाइड करेगा? स्टेम को, एंड देन उसके बाद लीव्स को. सो चिल्ड्रन, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज बिलो द सॉइल इज नोन एज रूट्स. देन शूट. इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड. और जो जमीन के ऊपर उगते हैं प्लांट के बाकी के हिस्से, दैट आर नोन एज शूट. उन्हें हम कहते हैं शूट. इट बेयर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और इस स्टेम के ऊपर लगे होते हैं लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. इन लार्ज प्लांट्स, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, द मेन स्टेम, उनकी जो ये मेन स्टेम होती है वो क्या होती है? थिक, बहुत मोटी होती है, एंड स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत होती है. एंड द अदर थिनर स्टेम, और बाकी की जो ये पतली पतली स्टेम्स होती हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रांचेज. उन्हें हम कहते हैं ब्रांचेज. सो चिल्ड्रन, द शूट सिस्टम इज फॉर्म्ड by buds, fruits, flowers, leaves, branches. So children,
There are two parts of the plant, that is root system and stem system. The part of the plant which grows under the soil, जो soil के नीचे दबा होता है उसे हम कहते हैं root. And the part of the plant which grows above the ground, और जो ज़मीन के ऊपर उगता है प्लांट का बाकी का हिस्सा, उसे हम कहते हैं shoot. तो ये सारा का सारा आपका क्या है, shoot. और शूट में क्या क्या आते हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बड्स. देन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. लुक एट एनी प्लांट इन द गार्डन और इन अ पॉट. आप किसी भी प्लांट को किसी गार्डन में जाके देखिए या आपके घर में पॉट गमले होंगे, वहाँ पर आप किसी भी प्लांट को ध्यान से देखना. एंड व्हाट विल यू ऑब्जर्व, और आपको क्या दिखाई देगा कि द पार्ट above the soil that you can see is called the shoot. मीन्स प्लांट का वो हिस्सा जो आपको पॉट गमले के ऊपर दिखाई देगा उसे हम कहेंगे शूट सिस्टम. एंड द पार्ट दैट इज इनसाइड द सॉइल, और प्लांट का वो हिस्सा जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, विच यू कैन नॉट सी, जिसे आप लोग देख नहीं पाते हो या हम लोग देख नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रूट. मीन्स basically there are two parts of the plant, that is root and shoot. The part that is inside the soil and which cannot be seen is known as root, and the part that is above the soil and which we can see is known as shoot. The shoot has stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. shoot पे क्या क्या लगी होती हैं, शूट सिस्टम जो किस चीज़ से बना होता है, क्या क्या होता है उसमें, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, बड, फ्लावर एंड फ्रूट. ऑल दीज आर इंक्लूडेड अंडर द शूट सिस्टम. प्लांट्स आर फिक्स्ड टू वन प्लेस, दे कैन नॉट मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. मीन्स प्लांट्स जो हैं, अब आप प्लांट को जहाँ उगा दे वहीं उगे रहते, अपने आप तो हिलकर इधर उधर नहीं जाते ना खाने के लिए. देन वो कैसे खाना खाते हैं, फिर कहाँ से मिलता है उनको खाना. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन मेकिंग फूड, और प्लांट का कौन सा हिस्सा जो है वो खाना बनाने में हेल्प करता है, लीव्स. ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट्स. हर प्लांट में जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनका काम क्या होता है, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, टू प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स. कि प्लांट के लिए, प्लांट के बाकी हिस्सों के लिए क्या प्रिपेयर करना है, फूड. और लीव जो है वो कैसे फूड प्रिपेयर करेगा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight. मीन्स ग्रीन लीव्स जो है वो प्लांट्स के लिए फूड कैसे प्रिपेयर करती हैं, वाटर, खाना बनाने के लिए लीव को क्या चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. ये तीनों चीज़ें चाहिए उसे खाना पकाने के लिए, किसको, लीव्स को. एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. और इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस. चिल्ड्रन, हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द लीफ. द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन. क्यों होता है ग्रीन, लीफ का कलर ग्रीन, बिकॉज ऑफ द ग्रीन पिगमेंटेशन नोन एज क्लोरोफिल. क्योंकि ग्रीन लीफ जो है वो ग्रीन की होती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. अब ये क्लोरोफिल जो है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, सनलाइट को, सूरज की रोशनी को अपने अंदर खींच लेता है. किस लिए खींच लेता है, टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए. द प्रिपेयर्ड फूड, फिर क्या होता है, द प्रिपेयर्ड फूड, जब लीफ के अंदर सारा खाना पक जाता है तो द प्रिपेयर्ड फूड इज पास्ड ऑन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जब खाना पक जाता है तो वो खाना जो है
बाकी के प्लांट के सभी हिस्सों को पास ऑन कर दिया जाता है। चिल्ड्रन, हैव यू नोटिस्ड दैट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स कैन बी ईटन एज फूड? हम कई प्लांट्स के पत्तों को भी खाने के रूप में फूड के तरह खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर जैसे धनिया के पत्ते, फेनग्रीक मेथी के पत्ते, मिंट पुदीने के पत्ते, स्पिनच पालक के पत्ते। So children, what we learned that green leaves prepare food for the plant, and the process by which green plants prepare their food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight is known as photosynthesis. The green pigment known as chlorophyll traps the energy of sunlight for making food. The prepared food is then passed on to all parts of the plant. Means ग्रीन लीव्स जो हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं और जिस तरीके को वो अपनाते हैं खाना बनाने के लिए उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब खाना बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, 3 मेन चीज़ें चाहिए। अब लीव का जो ग्रीन कलर है वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमें लीफ जो है वो ग्रीन दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? सूरज की रोशनी को अपने अंदर खींच लेता है और फूड प्रिपेयर करता है। फिर ये प्रिपेयर्ड फूड जो है प्लांट्स के सभी हिस्सों को दे दिया जाता है। फूड इज कैरिड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड, और जितना खाना बच जाता है एक्स्ट्रा वो लीफ के अंदर ही इकट्ठा रहता है। सो चिल्ड्रन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट हेल्प इन मेकिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड स्टोरिंग फूड, कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं फूड को बनाने में, फूड को डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने में, और फिर फूड जो एक्स्ट्रा फूड है उसको स्टोर करने में। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस? प्लांट्स यूजफुल कैसे हैं हमारे लिए? Plants are useful to us in many ways. First one is they are the primary source of the food. क्या करते हैं? प्लांट से हमें खाना मिलता है, so they are the primary source of the food. Then plants are the primary source of the food. हम खाना अपने किचन गार्डन में कई पत्ते भी खाते हैं और फूड भी खाते हैं जो प्लांट बनाते हैं, वेजिटेबल्स की फॉर्म में, फ्रूट्स की फॉर्म में। देन प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी को बहने से रोकते हैं। दे ब्यूटिफाई आर सराउंडिंग, प्लांट्स जो है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? सुंदर बनाते हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और उस ऑक्सीजन को एनिमल्स भी लेते हैं और ह्यूमंस भी लेते हैं फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। नाउ चिल्ड्रन, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अ प्लांट? हम प्लांट का ध्यान कैसे रख सकते हैं? हेयर आर 3 पिक्चर्स, आपको यहाँ 3 पिक्चर्स बनी हुई दिख रही होंगी। वट डू यू सी? आपको क्या दिख रहा है कि विच प्लांट विल ग्रो वेल? 3 पॉट में से कौन सा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा? आई गेस द फर्स्ट प्लांट विल ग्रो वेल, जो फर्स्ट पॉट का प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? क्या रीज़न है क्यों करेगा वो अच्छे से ग्रो? बिकॉज फर्स्ट प्लांट हैज़ गॉट वाटर एंड सन, क्योंकि उसको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, वाटर भी मिल रहा है और सनलाइट भी मिल रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एंड इन सेकेंड पॉट देर इज़ ओनली वाटर but no sunlight, so this plant can't grow well. Coming to the third pot,
दिस इज़ द वीकेस्ट प्लांट, ये सबसे वीक प्लांट है. वाई? बिकॉज इसको कोई भी पानी नहीं मिल रहा है और ओनली सनलाइट मिल रही है. सो चिल्ड्रन, we see that plants are also living things and they need sunlight, water, soil to grow well. Summary. Let us summarize what we have learnt today. Today we have learnt that the plants are living things. Then we also learnt that plants are classified according to their size are herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स, कितनी तरह की प्लांट्स होती हैं. फर्स्ट वन इज हर्ब्स. They are very small and close to the soil. Their stem is soft and green. For example, grass, coriander, spinach. Then shrubs. Their stems are soft and green when they are young and get woody and strong as they grow. For example, tulsi, rose plant. Then trees, very big and tall plants are called trees. Climbers. There are some plants which grow taller but the stem remains weak. They cannot stand up on their own, so they need the support of another plant to climb on them. For example, money plant, jasmine plant, pea plant. Then creepers. There are still others which also have a weak stem, but they prefer to creep on the ground rather than climbing up. For example, watermelon and pumpkin. Then we studied about the parts of the plant. There are two parts of the plant, that is roots and stem. The part of the plant that is under the soil is known as roots. That is known as roots. Roots hold the plants firmly to the soil, and most of the plants need water and salt from the soil. Roots take these and send them up to the stem and leaves. Then stem. The part of the plant that grows above the ground is known as stem. It bears leaves, flowers, fruit, branches, buds. Are the different parts of the plant. Functions of the stem. क्या काम करता है स्टेम? इट होल्ड लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जितने भी लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और ब्रांचेज है वो सब किसके ऊपर लगती हैं? स्टेम के ऊपर. इट सपोर्ट द प्लांट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड जमीन के ऊपर जो प्लांट उगते हैं उनको सहारा देता है स्टेम. और रूट जो है वो सभी को सहारा देता है, इन सभी को. देन स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट. स्टेम जो है रूट से क्या लेता है? पानी लेता है. एंड प्रोवाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और प्लांट बाकी के सभी हिस्सों को क्या करता है? वाटर प्रोवाइड करता है. कौन? स्टेम. सम स्टेम स्टोर फूड्स एंड कैन बी ईटन. देन लीव्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर. हमने पढ़ा कि स्टेम जो है वो फूड को स्टोर करके रखते हैं. बट अब ये फूड प्रिपेयर कौन करता है? Food is prepared by the leaves, as we see, and that leaves are usually green in color. Leaves जो है वो green color के होते हैं, and they come in different shapes and sizes. उनके अलग अलग शेप होती हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं. बट हर लीफ का फंक्शन, हर लीफ का काम एक ही है, और वो काम क्या है? टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाना. एंड वाई डू दे लुक ग्रीन? वो ग्रीन क्यों दिखते हैं लीव्स? बिकॉज ऑफ अ स्पेशल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दैम. क्योंकि लीव्स के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ हमें क्या दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है. अब वो ग्रीन लीव्स क्या करते हैं? प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. प्लांट के लिए खाना बनाते हैं.
आप क्या करेंगे, ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्लांट, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सनलाइट को अपने अंदर खींच लेता है फॉर मेकिंग food, and then the prepared food is passed on to all parts of the plants. Then flowers are the most beautiful part of the plant. प्लांट का सबसे सुंदर हिस्सा है फ्लावर। दे ग्रो ऑन द स्टेम, ये स्टेम के ऊपर उगती हैं। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग शेप, साइज और कलर के फ्लावर्स देखे होंगे आपने। बटरफ्लाइज एंड बीज कम टू द फ्लावर्स, बटरफ्लाई और बीज भी बैठती हैं फ्लावर के ऊपर। देन फ्रूट्स, अ फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट, आगे जो फ्लावर जो है वो किस में टर्न हो जाता है, फ्रूट में। इट इज़ द फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट विच स्टोर्स फूड, एंड मोस्ट फ्रूट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। फ्रूट्स में हैव वन और मैनी सीड्स, अब कई फ्रूट्स के अंदर वन सीड होता है और कई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, और वो सीड जो है आगे फिर नया प्लांट में टर्न हो जाता है। सो चिल्ड्रन, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट? रूट्स, स्टेम, branches, leaves, flower and fruit. Now let us test our learning, what we have learnt today. This is the worksheet. First, parts of the plant. You have to identify the parts of the plant and then write down here. First part of the plant is roots. Second is, this one is stem. And these are the leaves. That is flower. So roots, stem, that is stem, leaves, flowers. Then second worksheet, what do plants need? Plants को क्या चाहिए? Color the picture and complete the picture with the help of given words. And words are water, air, soil and sun. Plant need, plant को क्या चाहिए to grow well, बड़ा होने के लिए, अच्छे से बड़ा होने के लिए? Air, soil, water, sunlight. This is the third worksheet. In this, what you have to do, आपने क्या करना है इसमें? There are 4 main parts of the plant in this crossword puzzle. You have to identify all 4 parts of the plant and write them in the space given below. And the first part of the plant is, which we are identifying, कौन सा plant identify किया हमने? Leaf, L-E-A-F, leaf. And the second part of the plant is roots, R-O-O-T. First one is leaf, second one is root, and third part of the plant is stem, S-T-E-M, stem. And the fourth part of the plant is flower, F-L-O-W-E-R. So children, yes, we have identified all the 4 parts of the plants from the given crossword puzzle. So children, thank you. I hope you have understood very well. So see you soon. Bye bye.